عزیزان گرامی، سب سے پہلے حضور پاک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر دو طرح کے رشتے رکھے۔ ایک رشتہ ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ، دوسرا رشتہ ہے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ، تیسرا کوئی رشتہ نہیں۔ صرف دو ہی رشتے رکھے ہیں، ایک خالق کا مخلوق کا خالق کے ساتھ اور دوسرا مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہے۔ جب انسان اپنے خالق کے حقوق کو ادا کرتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، اور جب ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ خدمت کہلاتا ہے۔ جب انسان دونوں طرح کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں اور مخلوق کی بھی حقوق ادا کرتی ہے، تو پھر انسان کی تخلیق کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک تفسیر کے مطابق اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان دونوں حقوق ادا کرتے ہیں تو اس تخلیق کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا حقوق ہے وہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس وجہ سے اللہ کے جو حقوق ہے اس کی کیا ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، اور مخلوق کے جو حقوق ہے اس کی نزاکت بہت زیادہ ہے۔ مخلوق کی حقوق کی ادائیگی میں نزاکت زیادہ ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اگر انسان اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی کرتا ہے، جس طرح اللہ کے حقوق ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، لاپرواہی اور غفلت سے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی چاہت ہوگی تو اسے بخش دے گا ورنہ اسے سزا دے گا۔ لیکن اگر انسان ایک دوسرے انسان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں توجہ نہیں دیتا ہے، تو پھر جب تک وہ بندہ اس کی معاف نہیں کرے گا، جب تک دوسرا بندہ اس کے کیا حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی نزاکت ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا جب حق مار لیتا ہے اور جس کا حق مارا گیا ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوسرے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ انسان کے حقوق کے اندر نزاکت ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر پریشان ہے اور یہ شہرت ہوتی ہے اور یہ لوگوں کے اندر بات چلتی ہے کہ اپنے حقوق چھین کر لیے جائیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے حقوق چھین کر لیے جائیں، اپنے جو رائٹ ہیں اسے حاصل کیا جائے، چاہے جس طرح سے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے اوپر جو دوسرے کو حقوق ہے اس کو ادا کر دیا جائے، بیٹا یہ سوچے کہ ماں باپ کا جو میرے اوپر حق ہے اس کو ادا کرے، پڑوسی یہ سوچے کہ دوسرے پڑوسی کا جو حق ہے اس کو ادا کر دے، مقتدی یہ سوچے کہ امام کا حق ہے اس کو ادا کرے، امام یہ سوچے کہ مقتدی کا حق ہے اس کو ادا کرے، تو خود بخود حق ادا ہوتے چلے جائیں گے، حقوق جو ہے دوسرے کے ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ انسان اپنے رب کا جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کو سمجھ لے اور اس کی بھرپائی میں لگ جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، تو خود بخود اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو فرائض ہے وہ ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ جب دونوں حقوق کو ادا کرتا چلا جائے گا تو انسان اپنے منزل پہ پہنچ جائے گا۔ گویا یہ اس طرح ہے جس طرح ریل کے دو پٹری ہیں،
जब दोनों पटरी कायम होती है तो रेल अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर एक पटरी सही है दूसरी सही नहीं है तो गाड़ी गिर जाएगी, नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से अगर इंसान अल्लाह की इबादत तो करता है, अल्लाह के हुकूक और फराइज तो अदा करता है, लेकिन मखलूक के जो हुकूक है उसको अदा नहीं करता, उसके जो हक है उसको अदा नहीं करते, तो फिर क्या इस तरीके से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, यानी जन्नत तक वो नहीं पहुंच सकता है। या मखलूक के हक को अदा करते लेकिन अल्लाह का हक अदा नहीं करता है, तो इसके अंदर भी कमी हो जाएगी। तो इसी वजह से दोनों के हुकूक अदा करने चाहिए। आज इंसान क्या है, अल्लाह का हक तो अदा करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, ज़कात खैरात भी देता है, लेकिन जो इंसान के जो हुकूक है उसकी अदायगी में वो पीछे नजर आता है। जिस तरह अदा करने चाहिए एक दूसरे इंसान के हक, उस तरह अदा नहीं करता है। तो गोया कि वो जो नजाकत वाले हुकूक हैं उसके अंदर वो पीछे, और ये बहुत खतरनाक मामला है। आज इंसान नमाज रोजा करता है लेकिन दूसरे के हुकूक ग़ीबत चुगली बुराई करता हुआ नजर आता है। ये बहुत खतरनाक मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है। इंसान किसी के पीछे अगर कोई ग़ीबत कर लेता है तो ये बहुत बड़ा मामला है। जब तक जिसकी ग़ीबत की गई वो माफ नहीं करेगा, जब तक उसकी माफी नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, चाहे जितनी मर्तबा उसने हज कर लिया हो, रात दिन इबादत करता हो अल्लाह की, लेकिन उसके क्या है, बख्शिश नहीं होगी। एक सहाबी आए अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है तो उसका क्या दर्जा है, क्या मर्तबा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए जन्नत है। सहाबी ने पूछा उसके गुनाह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बहुत खुश हुआ सहाबी और वो वापस चल दिए। जब जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फौरन बुलाया, बुलाओ इसे वापस बुलाओ। बुलाया, कहा इल्लल कर्ज, लेकिन कर्ज, अगर कर्ज है तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। क्या कहा? अगर कर्ज है तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। समझिए कि ज़कात, ये शहादत कितना बड़ा मकाम रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, जन्नत तुम्हारे लिए हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे का हक है तुम्हारे ऊपर तो वो अदा किए बगैर तुम्हारे लिए बख्शिश नहीं है। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का हक है उसके ऊपर तो उसको रोक दिया जाता है। शहीद होने का तो मर्तबा ये कि उसको जन्नत की तरफ बुलाता है, लेकिन किसी का हक है तो उसको खींच ला दिए जहन्नम की तरफ। अब इस दर्जे में क्या किया जाएगा? तो रिवायत के अंदर आता है अगर कोई ऐसा शख्स है जो शहीद हो चुका है लेकिन उसके ऊपर किसी का हक है तो उसको जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार है जिसे आराब कहा जाता है, उस दीवार के बीच में खड़ा कर दिया जाता है उसे, न जहन्नम की तरफ न जन्नत की तरफ, बीच में रख दिया जाता है उसे। अब साहिब हक को बुलाया जाता है, साहिब हक को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला कहेगा इसे माफ कर दे। वो कहेगा मैं माफ नहीं करूंगा, मैं इसे, मुझे तो अपना हकूक चाहिए, मेरे जो हक है इसके ऊपर वो चाहिए। तो ये तो शहीद अल्लाह के रास्ते में हुआ, बहुत बड़ा मकाम है शहीद का। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने जानिब से उसको खजाना अता करेगा, बहुत सारे उसे खजाना देगा, तोहफा देगा। फिर जब वो तोहफा खजाने देंगे अल्लाह ताला, जब वो खुश हो जाएगा फिर अल्लाह ताला कहेगा इसे माफ कर दे। तो जो बहुत सारे तोहफा और खजाने लेने के बाद अल्लाह की तरफ से बहुत सारी मेहरबानी होगी उसके ऊपर, उसके बाद वो अपनी खुशी से उसको माफ कर देगा, उसके बाद वो फिर जन्नत में जाएगा। जबरदस्ती अल्लाह नहीं कहेगा तू इसको माफ ही कर, मेरे रास्ते में कुर्बान हुआ तो माफ कर इसको, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अल्लाह ताला अपने खजाने से अपने जानिब से उसको इतना अता करेगी वो बंदा खुश हो जाएगा उसको माफ करने पर। फिर जब माफ करेगा उसके बाद अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर पहुंचाएगा। तो समझिए एक बंदे का हक कितनी नजाकत रखती है वो, कि जब तक कोई इंसान माफ नहीं करेगा वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। अगर वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है, अल्लाह के तरफ से अल्लाह के हुकूक में जितने भी उसने कमी कोताही की अल्लाह ने सारे माफ कर दिए, लेकिन इंसान का क्या था, अल्लाह ने माफ नहीं किया उसको, जब तक कि उसको खुश नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो इस तरह है इंसान के हुकूक की नज़ाकत।
इसी तरीके फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, शहीद होने के भी कई दर्जे हैं। एक जो है फर्ज किफाया होता है और एक फर्ज ऐन होता है। फर्ज किफाया के अंदर कुछ लोगों का शामिल हो जाना काफी है, फर्ज ऐन के अंदर हर एक का शामिल होना जरूरी होता है। फर्ज किफाया के दर्जे में था, वो इंसान अपनी माँ की इजाजत के बगैर चला जाता है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, तो कल कयामत के दिन उस इंसान को रोक लिया जाएगा जन्नत में जाने से, अगरचे वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है। और जब कयामत के दिन मैदान महशर में उसकी माँ पहुंचेगी और उसे कहा जाएगा इसे माफ कर दे, माँ कहेगी मैं माफ नहीं करना चाहती, मैं किस तरह जिंदगी गुजार के आई हूँ, मेरा एक ही बेटा था, इसने सोचा नहीं कि मेरे माँ के साथ क्या होगा नहीं होगा, मैं क्या क्या मुशक्कतें उठाई, किस तरह परेशानियां दुनिया की झमेले उठाकर आई हूँ, मैं तो माफ नहीं करने वाली। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको खजाने दिए जाएंगे, अपनी रहमत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, उन पर मेहरबानी होगी अल्लाह की तरफ से। फिर वो माँ जब खुश हो जाएगी उसके बाद कहा जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे इसे माफ कर दे, जब माँ माफ कर देगी उसके बाद वो जन्नत में जाएगा। तो समझिए कितना खतरनाक मामला है हुकूकुल इबाद। उसी हुकूकुल इबाद के अंदर एक क्या है, इंसान की गीबत करना है, चुगली करना है। आज इंसान गीबत करता हुआ नजर आता है, चुगली करता हुआ नजर आता है और इसकी अहमियत ही नहीं देता। नमाज पढ़ने की अहमियत देता है, ज़कात अदा करने को अहमियत देता है, हज करना बहुत बड़ा सवाब का काम है, इतना लंबा सफर करके इंसान जाता है, इतना माल खर्च करके जाता है, उसकी अहमियत देता है। लेकिन किसी की गीबत करता है उसकी अहमियत ही नहीं देता, जबकि गीबत करना बहुत खतरनाक मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है। गीबत की सजा तो ये है कि जैसे इंसान गीबत करता है, गीबत करने वाला की नेकी जो है जिसकी गीबत की जाती है उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अब बताइए कितना खतरनाक मामला। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि एक दूसरे मुसलमान भाई का गोश्त खाओ? इंसान कहेगा नहीं, ऐसा कैसे हम करेंगे। लेकिन फरमाया कि गीबत करना ऐसा ही है जैसा कि एक दूसरे मुसलमान भाई का गोश्त खा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या गोश्त खाए? अल्लाह के रसूल नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स किसी की गिबत करता है तो गोया वो अपने भाई का गोश्त खाता है। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हकीकतन उसके अंदर वो बुराई है जो मैं किसी की बुराई बयान कर रहा हूँ उसके अंदर पाई जा रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो गीबत है, यही तो गीबत है कि किसी के अंदर वो बुराई है, तुम दूसरी जगह उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, और ऐसी बुराई है कि अगर उसके सामने तुम बोलो तो उसे नाराजगी हो, उसे तकलीफ हो, तो यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो बात है ही नहीं और आप उसके बारे में बोल रहे हैं तो ये तो बहतान है, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है, गीबत से भी बढ़कर ये बड़ा गुनाह है। आज इंसान क्या कहते हैं, भाई गीबत मत कर फलाएं, नहीं भाई ये तो उसके अंदर बुराई पाई जाती है, चलो मैं उसके सामने कहूंगा, मैं उसके सामने कह सकता हूँ, लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या आप उसके सामने बोल रहे तो गीबत नहीं होगी? गीबत होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि ऐसी बात उसके पीठ पीछे बोली जाए जो उसके सामने कहा जाए, बोली जाए तो उसको नाराज हो, तकलीफ हो उसको, यही तो गीबत है। तो क्या आप ये कह लें कि मैं उसके सामने ही बोल सकता हूँ, ये गीबत नहीं, इससे ये गीबत का छुटकारा नहीं है, बल्कि वो गीबत ही है। आज इंसान गीबत करने के अंदर पीछे नहीं हटता है, तरल्ले से गीबत करता फिरता नजर आता है, जबकि गीबत करने की वजह से उसकी तमाम नेकियां क्या है, उसकी जो नेकियां होती है दूसरे गीबत करने वाले की, जो जिसकी गीबत की जाती है उसके खाते में चला जाए। कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहाबा से पूछा, ए सहाबी मेरे सहाबा बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब मोहताज कौन है? सहाबा ने फरमाया गरीब वो है, मोहताज मुफलिस वो है जिसके पास रुपया पैसा दिरहम दिनार नहीं हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीब मुफलिस वो है जो दुनिया से जब जाएगा तो बहुत सारी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज ज़कात हज वगैरह बहुत सारी नेकियां की होगी उसने लेकर जाएगा, पारो जैसा नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर उसने किसी की ग़ीबत की होगी, चुगली की होगी, किसी की बुराई की होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, साहिब हक आएंगे अल्लाह के दरबार में और अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसने दुनिया के अंदर मेरे ऊपर जुल्म किया था, दुनिया के अंदर इसका बोलबाला था, इसके हाथ में ताकत और कुव्वत थी, इसने अपनी बात मनवा लिया, मेरे हक को पामाल कर दिया, मेरे हकूक अदा नहीं किए इसने, आज मैं आपके दरबार में अपने हकूक का मुतालबा करने आया हूँ, मेरे हक अदा किए जाए। चुनांचे उस जालिम को बुलाया जाएगा,
जिसने दुनिया के अंदर किसी दूसरे इंसान के हकूक को पामाल किया था, और फिर वहां तो मामला कुछ और ही होगा। किसी ने कर्ज दबा लिया तो कर्ज अदा नहीं करेगा, पैसा तो नहीं चलेगा वहां पर। किसी को मारा पीटा था तो वो भी नहीं चलेगा वहां पर, बल्कि जो नेकियां लेकर गया था उस नेकियां वो नेकी लेकर साहिब हक को अदा किया जाएगा। इसी तरीके जितने भी साहिब हक आते जाएंगे हर एक को उसकी नेकियों में से नेकियां दी जाएंगी, यहाँ तक कि पहाड़ जैसी जो नेकियां लेकर जाएगा सारी की सारी नेकियां क्या है, खत्म हो जाएंगी। फिर आखिर में क्या होगा, साहिब हक तो बाकी, नेकियां तो खत्म हो चुकी है। अब जो साहिब हक होंगे उसकी गुनाह लेकर जालिम के ऊपर डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि इतने गुनाह उसके ऊपर आ जाएंगे वो जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएगा, जहन्नम के अंदर उसे डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही मुफलिस है कि दुनिया से तो बहुत सारी नेकियां लेकर आया, लेकिन यहाँ अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के बाद उसके ऊपर गुनाह लाद दिए गए। दुनिया के अंदर किसी के साथ जुल्म किया था, किसी के हुकूक की पामाली की थी, गिबत की थी, चुगली की थी, बुराइयां की थी, जिसकी पादाश में क्या है वो जहन्नम के अंदर चला गया। तो ऐसा लोग क्या है, मुफलिस है। गौर करें हमारी कितनी नेकियां, एक दूसरे के कितने हुकूक हम अदा करते हैं, इसलिए हर एक को हुकूक अदा करने चाहिए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, कि बड़ी हलाकत और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो गीबत करने वाला है और ताना तशरी करने वाला है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, बड़ी हलाकत है उस शख्स के लिए जो गीबत करने वाला। आज इंसान गीबत करता हुआ नजर आता है, तानो तशरी करता हुआ नजर आता है। एक घर के अंदर दूसरा भाई तीसरा भाई एक दूसरे भाई को तानो तशरी देता हुआ नजर आता है। दो बहू है तो एक बहू दूसरी बहू को तशरी देती है, सास अपने बहू के पीछे लगी रहती है, ससुर अपने बहू के पीछे लगा हुआ रहता है, और ऐसी ऐसी जबान दराजी बातें करता है जिससे दिल चाक हो जाए, ताने देते हैं लोग। उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या है कि उसके लिए बड़ी हलाकत और बर्बादी है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और फरमाते मालदारों के लिए कि जो पैसे जमा करके रखे हुए खजाने और उसे गिनते रहते हैं, बार बार गिनता और खुश होता रहता है, और वो ये सोचता है ये चीज तो हमें हमेशा बाकी रखेगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा ख्याल उम्मान बातिल है। दुनिया के अंदर तुम्हारी ताकत है, पैसे है तुम्हारे पास, माल है, दौलत है, तुम माल दौलत के बलबूते तुम दूसरे पर जुल्म कर रहे हो, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं बरकरार है। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हें हुतमा के अंदर डाल दिया जाएगा। हुतमा क्या चीज है, उमा अदरा का मत हुतमा, कुरान खुद कहता है तजस्सुस, यानी मुताल पूछता है तुम्हें पता भी है हुतमा क्या चीज है, कैसी हुतमा के अंदर डाला जाएगा इंसान को। आगे अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है नारुल्लाहिल मुक़दा, वो ऐसी आग है जिसे अल्लाह ने खुद दहकाई है। हुतमा क्या है, वो ऐसी आग है जिसे अल्लाह ने खुद दहकाई है, ये इंसान की दहकाई हुई आग नहीं है। आज इंसान आग दहकाता तो अपने आप को नाश करता है, जैसे कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ आग दहकाई थी। कई मुद्दत तक, कितनी मुद्दत तक उसने लकड़ियां जमा की, और लकड़ियां जमा करने के बाद आग दहकाई गई। इस कदर उसके अंदर तपिश थी और इस तरह शोले भड़क रहे थे तो बताया जाता है 4-4 मील तक कोई इंसान नहीं भटकता था उसके पास, इतनी उसकी दहक थी और तपिश। ऊपर से परिंदा उड़ता था वो भी जल के गिर जाता था नीचे। 4-4 मील बहुत काफी लंबा चौड़ा हो गया। नमरूद को अपने आप को बहुत ज्यादा असर थी। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। अब ये सोचने लगा नमरूद की इतनी बड़ी आग को दहका दिया मैंने, अब डालेंगे कैसे, क्योंकि उसके 4-4 मील तक वो करीब नहीं जा सकता। तो एक जो है बड़ा जुब्बा कुब्बा के अंदर दाढ़ी वाला आया, वो क्या था, इब्लीस था। इब्लीस आया, क्या मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अंदर कैसे डाला जाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उसने देखा था जब जन्नत के अंदर था वो कि जहन्नमी को कैसे डाला जाएगा, मिंजमीक के जरिए डाला जाएगा। जैसे गुलेल है, गुलेल के अंदर गोली डाल के खींच के फेंकी जाती है, काफी दूर जाती है, मिंजनीक एक सिस्टम है उसके जरिए। तो उसने बतलाया कि ऐसा बनाओ और इसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांध के डाल दो और खींचो, दो से बीच में जाके गिर पड़ेंगे। चुनांचे ऐसे ही किया गया, लेकिन उसको नाज नहीं थी। उसका जो वजीर था नमरूद का, उसने कहा अपने आका से, नमरूद से, कि ऐसा करें, क्योंकि उसके दिल के अंदर ये बात खटक रही थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो उसने नमरूद से कहा आका आप ऐसा करें कि अपना जुब्बा उतार के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहना दें।
کہ بھائی اس کے اندر کیا منطق ہے, کیا راز ہے؟ کہ راز یہ ہے اصل کہ جب آپ ان کے اوپر جبہ پہنا دیں گے اور اس کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر, وہ آگ کے اندر انگارے میں, تو اگر یہ جل جائیں گے اور جبہ بھی جل جائے کوئی بات ہی نہیں, اور اگر ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جبہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم بچ گئے. کیا کہیں گے؟ جبہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم بچ گئے, آپ کا نام پھر بھی اونچا رہے گا, اس وجہ سے اب جبہ پہنا ہے. یعنی اس صورت میں بھی اپنا نام روشن کرنا چاہتا تھا. لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ کے اندر تو سب سے پہلے جبہ کو جلائے گا. اس کو جلائے گا, سب سے پہلے جبہ جلائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے, آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ایسی ٹھنڈی ہو جو سلامتی والی ہو, کیونکہ ٹھنڈی سے بھی انسان مر جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, کوئی بھی انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا. خدا کا اکرام تھا, خدا کا حکم تھا. خیر, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا, تو اس آگ پر کیا ہے, نمرود کو ناز تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرا, نار اللہ الموقدہ, یہ میری آگ ہے جس کو اللہ نے تہتائی ہے. التی تطلع علی الافئدہ, یہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے. کہاں پہنچتی ہے؟ دلوں تک پہنچتی ہے. صرف جسم کے اوپر نہیں بلکہ دل تک جھانکتی ہے, دل کو جھانکتی ہے. جس انسان کو دل کا مرض ہے وہ سمجھتا ہے دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے, دل کی پریشانی کیا ہوتی ہے. تو یہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یہ آگ ایسی کہ فوراً دل تک پہنچے گی. تو یہ بربادی اور ہلاکت کس کے لیے فرمایا, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جو لوگ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور طعن و تشریح کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ غیبت کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے دوسری کی برائی کرنے سے, چغلی کرتے ہیں اس سے محفوظ رکھے, طعن و تشریح نہ دیا کرے کسی کو. اگر کوئی انسان کسی کی برائی بیان کرتا ہے, کسی کی طعن و تشریح, یعنی کسی کو کیا کہتے ہیں طعن و تشریح کرتے ہیں, آپ اپنے بات سے یہ سمجھ لیں کہ آر دلانا, کسی کو آر دلاتے ہیں آپ. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر لیا ہے اور اس سے وہ توبہ کر چکا ہے, پھر اگر کوئی انسان اس گناہ پر اس کو آر دلاتا ہے, اس کو چڑھاتا ہے, تو جب تک وہ انسان خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی. بہت خطرناک معاملہ ہے. اس لیے کسی بھی انسان کو آپ طعن و تشریح نہ کیا کریں, نہ کسی کی غیبت کریں. غیبت کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوگا. آج انسان کتنی محنت سے عبادت کرتا ہے اللہ کی, ٹھنڈی جیسے موسم میں نرم بستر کو چھوڑ کر آنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. رمضان کے روزے رکھنا, اپنی تمام خواہشات کو دبا کر انسان روزہ رکھتا ہے, مال روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن نیکیاں جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گی آپ کی. آپ نے 2 منٹ کے لیے کسی کی برائی کی, آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی. آپ نے اتنی محنت سے نیکیاں کمائی تھی, اللہ کے دربار میں اتنی محنت سے آپ صبح اٹھ کر آتے ہیں, لیکن آپ کی نیکیاں جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگا. اس لیے تمام خاص طور پر لوگوں کے حقوق جو ہے اس کی آپ ذمہ داری سمجھے, اس کے حقوق کی ادائیگی میں رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق اور مخلوق کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.